Hello everyone, welcome to my channel Next Gen Hub Guru. Today I came up with a new session of history. क्या आपको पता है आज से 5000 ईयर्स पहले एक ऐसा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ जो आज के एडवांस सिविलाइजेशन में से ही एक था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह सिविलाइजेशन इतना एडवांस था कि आज भी कई साइंटिस्ट इसको डिकोड करने में लगे हुए हैं। यस, दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो अब मैं बताती हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिस्कवर हुआ था। A British soldier by the name of James Lewis, he escaped from the East India Company, and while he was wandering, he came across Punjab region, and there he saw some ruins. He immediately recorded those ruins in his diary, and it was the year 1856. And after that, in 1921, an archaeologist by the name of Dayaram Sahni excavated Harappa. And soon after that, in the year 1922, an archaeologist by the name of R.D. Banerjee discovered Mohenjo-daro. And these two archaeologists were working under Director General of India Archaeological Survey, John Marshall, who excavated the whole place and announced his findings in 1924. और ये सिटी इतना परफेक्ट था कि ऐसा लगता था कि किसी इंजीनियर ने इसको प्लान किया हो। And this Indus Valley civilization had 4 major cities. First one Harappa. It was the first discovered site. Mohenjo-daro, famous for Great Bath. Dholavira, famous for water management. And Lothal, famous for its dockyard. And जो थी ये केवल एक सिटी नहीं था बल्कि एक पूरा सिटीज का नेटवर्क था। और अब मैं आपको इसके लोकेशन के बारे में बताती हूँ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्ट्रेच्ड अक्रॉस मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध रीजन तक। एंड इट वॉज डेवलप्ड अलॉन्ग द रिवर सिस्टम ऑफ इंडस एंड घाघर हाकड़ा रिवर। सो नाउ आई विल टेल हाउ द सिटी वॉज प्लान्ड। सबसे शॉकिंग पार्ट है कि यह सिटी बहुत ही वेल प्लान्ड थी। स्ट्रेट रोड्स, grid system and proper layout. Houses were built with standardized bricks and all houses had access of water, and सबसे amazing चीज थी drainage system, covered drains, underground system. Even major cities of today struggle with this kind of drainage system. Now I will tell you about the daily life of Indus Valley people. They wore cotton clothes and they led a very organized life. They wore cotton clothes, used ornaments, made pottery and tools. इनकी लाइफ बहुत ही पीसफुल थी क्योंकि वॉरफेयर के एविडेंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। They focus more on trade and daily life, and their trade was their biggest economy. ये लोग मेसोपोटामिया तक ट्रेड करते थे और द मेसोपोटामिया was spread from Iraq to Kuwait. And Lothal had the biggest dockyard, which shows their strong maritime trade. They use seal for identification. एक seal है बुल वाली जो आज तक famous है. And now I will tell you about their art and culture. They had very rich art and culture. Beautiful jewelries, terracotta figures, stone sculptures देखने को मिलते थे. Their art was simple, but वो highly detailed थी. They had a script, but still it cannot be deciphered. Even today we are trying to unveil the mysteries of Indus Valley civilization. और जो Indus Valley civilization थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। सिटाडेल जो था वो वेस्ट में था और जो लोअर टाउन था वो ईस्ट में था। तो जो सिटाडेल था वो हाई प्रीस्ट, हाई नोबल रैंक्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए थे, और जो लोअर टाउन था वो जनरली रेसिडेंशियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस और ट्रेड के लिए था और कॉमन पीपल के लिए था। और सिटाडेल में जनरली 2 पार्ट्स थे, द ग्रेट बाथ एंड द जनरल असेंबली, जहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का वर्क होता था। और वो सिटाडेल पूरा फोर्टिफाइड था जिससे वो एनिमीज से प्रोटेक्ट
अपने को एनिमी से प्रोटेक्ट कर सके। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट। सो धीरे धीरे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता गया। सो सबने अपनी अपनी थ्योरीज रखे हैं। अकॉर्डिंग टू सम ये डिक्लाइन जो हुआ वो नेचुरल कैलमिटी और ड्राइंग ऑफ रिवर्स और नेचुरल डिजास्टर्स के लिए हुआ, पर जो भी कुछ हुआ इसका रीज़न का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एंड ये जो है ये बट हमको इतना पता चल गया है कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के वजह से हमारे रूट्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। इट मेड आवर रूट्स वेरी स्ट्रांग एंड हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। इट इज़ सो सिग्निफिकेंट इवन टुडे कि हम इसके बारे में आज भी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में आज भी पढ़ रहे हैं, और आज भी कितने सारे सीक्रेट्स ऐसे हैं जो अभी तक अनवेल होने के लिए वो मचल रहे हैं। सो एज यू नो, एज विदाउट पास्ट देयर इज नो प्रेजेंट। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा लोअर टाउन है, यहाँ पर ट्रेडर्स लोग हैं और ये लोग अपना सेल कर रहे हैं, और ये है सिटाडेल जो फोर्टिफाइड हो रहा है, और ये है पूरा एग्रीकल्चर, और ये है पूरा ड्रेनेज सिस्टम, और बीच बीच में बहुत सारे इंटरवल्स है क्योंकि जिससे ये वेस्ट यहाँ पर रुक सके और बाकी का वाटर पूरा फ्लो हो सके, एंड इट कैन फ्लो थ्रू ऑल द हाउसेस। और ये है ग्रेट बाथ जो सोशल एंड रिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए था। सो यूज फॉर सोशल एंड रिचुअल प्यूरिफिकेशन। ये है द ग्रेट बाथ। सो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू want to get more information, then you can subscribe to my channel and press the bell icon. So that's all for today. Thank you.